Welcome one and all to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end, subscribe and like to our channel. Hope you'll be blessed by the word. Also do pray for our ministry. Praise the Lord and Shalom. And my topic today is worship. और आज का जो टॉपिक है वो आराधना है। How many of us like to worship the Lord? कितनों को आराधना करना परमेश्वर का पसंद है? You like it? Yes. Okay. All right. So we'll talk about worship today. आज हम आराधना के बारे में सीखेंगे। Now let me clarify. We cannot teach somebody worship. अब मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि हम किसी को आराधना करना सिखा नहीं सकते। Because it is an attitude of the heart. क्योंकि ये हमारे मन की रीति का होता And a है। personal choice that we make. और वो एक हमारा खुद का तरीका होता है जो हम एक अपनाते So हैं। we really can't teach somebody attitude. तो हम किसी को एक एटीट्यूड, एक तरीका नहीं सिखा But we सकते can हैं। shape it as per the scriptures. लेकिन हम वो जो हृदय है उसको वचनों की तरह में ढाल सकते हैं। So here's one more question now to you. तो एक और प्रश्न आप सभी के If I'm to ask you what is worship, what will you say? अगर आपसे पूछा जाए कि आराधना क्या है तो आप क्या जवाब What will you देंगे? say? What is worship? Anybody, feel free. Come on, we need to run fast. आराधना क्या है? जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। किसने बोला? Giving thanks and praise to the Lord. Okay? और कोई है पीछे? हाँ? परमेश्वर की महिमा करना. Okay, thank you, brother. और कोई है? Honoring the Lord. Yes. Connecting yourself more towards Him. Okay, thank you. सकते हैं In the तो Old बोल Testament, जाएंगे। the word that is translated as worship is a word called shakha. पुराने नियम में जब हम आराधना को असलियत में हिब्रू में बोलते हैं तो वो शाखा Can you होता say with है। me? Shakha. Okay, what does shakha mean? शाखा का क्या मतलब होता Shakha है? means to bow down. शाखा का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के सामने झुके हैं। Or it means to completely prostrate yourself in front of someone. पूरी रीति से या फिर किसी के सामने समर्पण करना होता है It's कि हम like शाखा। completely going down like this. This is shakha. पूरी रीति से जब हम किसी को समर्पण करते हैं अपना समर्पण तब हम उसको शाखा बोलते And the हैं। Old Testament describes worship like this. और पुराने नियम आराधना को इस रीति से हमें बताता I'll है। give you an example. Genesis chapter 22 verse 5, where Abraham says we are going to worship the Lord. उत्पत्ति 22 के हम देखेंगे 5 में कि किस तरीके से इब्राहिम ने आराधना किया था। Okay, he tells his servants, my son and I are going to worship the Lord. Actually, he was going to kill his son, but that's how he described worship. इब्राहिम अपने सेवकों को बोलता है कि वो परमेश्वर की आराधना करना चाह रहा है, लेकिन असलियत में वो अपने बेटे को उसको कुर्बान करने के लिए जा रहा था। But he said we're going to worship. He said shakha means we're going to bow down in front of the Lord. लेकिन वो उन्हें कहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करने, हम शाखा करने जा रहे हैं। In Exodus chapter 24, हम निर्गमन 24 में अध्याय में देखते it हैं says, you know what happens? Moshe goes up to the mountain. कि जो मोशे मूसा है वो पर्वत पर जाता है। For what? क्या करने के To लिए? meet God, and then God gave him the 10 commandments. परमेश्वर से मिलने के लिए और उसकी 10 आज्ञाओं को लेने के लिए। And what does it say? और वो क्या कहता है? That Moses went up, he went to worship, he went to bow down, shakha before the Lord. और वचन क्या कहता है कि जो मूसा है वो पर्वत पे गया, परमेश्वर की आराधना करने, एक शाखा करने गया वो। Okay, now in the New Testament, और जो हम नए नियम में आते the word हैं, used is proskenu. जो शब्द नए नियम में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है प्रोस्टेनु। That's how do you pronounce it? Proskonu. प्रोस्टेन्यू करके जो Can you नहीं say with कहते me? हैं। Now what does that mean if it's directly translated? अभी इसका क्या मतलब होता है अगर हम उसको अपने शब्दों में It लाएं? again means the same thing, to prostrate yourself in front of someone. उसका भी वही अर्थ होता है कि हम किसी के सामने समर्पण And it करें। also means to kiss someone. और उसका मतलब होता है कि हम किसी का चुम्बन भी करें। Just imagine that. This is how the Bible describes worship. जस्ट ये सोचिए कि बाइबल हमें आराधना का मतलब ये करना सिखाता है। And I'll give you examples of where this word is used. John 4:24, और हम एक वचन निकालेंगे यूहन्ना 4:24, Hebrews 1:6, इब्रानियों का 1:6 and Revelation 22 verse 9. और प्रकाशित वाक्य का 22 In अध्याय। all these places it says worship. The English Bible says worship, but in Greek it says this word proskunu. इन सभी वचनों में हम देखते हैं कि इंग्लिश में भले ही लिखा रहेगा कि ये वर्शिप है, लेकिन जब हम इब्रानी भाषा में जाते हैं इसका मतलब कि हम शाखा कर रहे हैं। So worship is an attitude of the heart. तो जो आराधना है वो अपने हृदय की रीति It's का not a है। performance on the stage. वो किसी स्टेज पर कोई कार्य करना नहीं है। Amen.
आमीन। Worship is more than music, it's more than a song. आराधना उन सभी गानों से बढ़कर है। Worship is a relationship with God. जो आराधना है वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। Worship is more than spiritual, it is physical also. जो आराधना है वो ज्यादातर हमारी आत्मिक रीति में है। It is both physical and spiritual. वो हमारे आत्मिक रीति में और हमारे शारीरिक रीति से हम शाखा Psalm करते हैं। 42 verse 7 भजन संहिता का 42 अध्याय or 7, 7 it वचन says deep calls unto deep. कि जो गहराई में है वो और गहराई Have में you बुलाता read है। this verse? Deep calls out to deep. क्या हमने ये वचन पढ़ा है कि गहराई में जो है वो गहराई में What does बुलाता this है? mean? इसका क्या अर्थ It है? is deep. What is deep inside you? कि हमारे अंदर भीतर में क्या Your है? spirit. हमारी गहराई में Your हमारी spirit आत्मा is है। deep inside you. Deep inside your body is your spirit. That's who you really are. That's who I really am. हमारी आत्मा जो हमारे भीतरी मन में है वो हमें बुलाती है। And deep calls out to deep. Deep means the depth of God, the Holy Spirit. Our spirits calling out to the Holy Spirit. और गहराई में जो हमारी आत्मा रहती है वो हमारे परमेश्वर की आत्मा को उस गहराई से बुलाती है। That's when we are really deep in worship. और तब होता है जब हम सच में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And fifthly, I'd like to say, worship is a lifestyle. और हम आखिर में देखेंगे पांचवा की जो आराधना है वो हमारे जीवन की It's a रीति lifestyle that glorifies God. कि हम अपने जीवन में किस तरीके से जीते हैं। So whether you're a musician or not a musician, you can still worship the Lord because your life glorifies God. That's worship. तो अगर हम एक गायक हो या नहीं हो लेकिन हमारे जब हम अपने कार्यों से परमेश्वर की महिमा करते हैं। Paul says in Galatians 1:24, they glorified God in me. गलातियों को 1:24 हम देखते हैं कि लोग हैं वो हमारे अंदर परमेश्वर की वो महिमा देते हैं। Yeah, they saw his life and they glorified God. जो लोग हैं उन्होंने उसको पौलुस को देखा और उसने परमेश्वर की महिमा की लोगों That's ने। real worship. वो होती है असली So आराधना। now next question to you. तो अभी दूसरा एक सवाल, Where do we worship? कहाँ हमें आराधना करनी है? Where? Anyone? Any answers? Yes? In church. In church? Okay. अपने घर में चार दीवारी के बीच में। अपने घर में भी कर सकते हैं आराधना? Yes? Anyone else? और किसी को आराधना Yes, कहाँ sister? करनी है? कहीं भी? Anywhere? Alone. Yeah, alone. Correct. Okay. Right. So worship is not restricted to a service. जो आराधना है वो सिर्फ हम एक प्रार्थनालय में आते हैं वो सिर्फ उसमें नहीं है। So when the Lord Jesus, Yeshua, when he met the Samaritan woman, you know that story at the well, Samaritan woman, John Yeah. chapter 4. हाँ, क्या हम यीशु मसीह का वो एक घटना देखते हैं जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिला था कुएं के पास। You know what he says? उसने Believe क्या me, कहा? woman, the time is coming when you will neither worship on this mountain nor in Jerusalem. वो कहता है उस सामरी स्त्री को यीशु मसीह कि ऐसा एक समय आता है जब तुम परमेश्वर को ना ही इस पर्वत पे या फिर किसी भी और पर्वत पे करोगे। Why? Because the Samaritans worshiped the Lord on that mountain in Be- Samaria, क्योंकि जो सामरी लोग हैं वो सामरी का जो पर्वत था वहाँ पे आराधना करते and थे Jews worshiped God in Jerusalem. और जो यहूदी लोग थे वो यरूशलेम में परमेश्वर की And आराधना both were करते थे against one another. और जो दोनों ही जातियां थी वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में थी। Both were part of the house of Israel. वो दोनों इजराइल में रहते थे, इजराइल के If घराने someone के told you थे। that Samaritans were Gentiles, that's incorrect. Samaritans were also part of the house of Israel. अगर किसी ने हमें बताया रहेगा कि सामरी इजराइल से अलग थे तो नहीं, जो सामरी थे वो इजराइल के घराने के थे, एक के परिवार But they थे। had a different style. लेकिन उनका जीने का जो तरीका था वो अलग They था। only believed in the first 5 books in the Torah. लेकिन जो सामरी लोग थे वो सिर्फ पहले की 5 किताबें जो बाइबल में है उस पे भरोसा They didn't करते believe थे। in the rest of the Bible. वो बाकी के पूरे पवित्र शास्त्र में भरोसा नहीं करते Jews थे। took all 39 books of the Old Testament. That's one of the main differences. लेकिन जो यहूदी लोग थे वो सभी पूरे के 39 जो किताबें हैं उन सब पे विश्वास So करते थे। Samaritans worshiped the same God Jehovah on one mountain. Jews worshiped the same God Jehovah in Jerusalem. जो सामने लोग थे वो सेम परमेश्वर को अपने पर्वत पर उनका आराधना करते थे और जो यहूदी लोग थे उसी परमेश्वर की आराधना वो किसी और पर्वत पे करते Now थे। Yeshua is talking, Yeshua a Jew, he's talking to a Samaritan woman and saying a time is coming when you will neither worship on this mountain nor in Jerusalem. और अभी यीशुआ उस सामरी स्त्री को क्या कहता है कि एक ऐसा समय आता है जब तुम ना ही किसी सामरी पर्वत पे या फिर किसी यहूदी पर्वत पर उसकी आराधना He करोगे। knew the Jews are going to get scattered all over the world. उसे पता था कि जो जितने भी यहूदी है इजरायली वो सभी तितर-बितर हो जाएंगे So पूरी worship दुनिया will now में। happen all over the place. और इसके लिए अभी आराधना पृथ्वी के हर एक जगह पे He होती है। was not saying that Jerusalem is not important. वो ऐसा नहीं कह रहा था कि यरूशलेम जरूरी नहीं है। He was trying to say it's going to get globalized.
वो ये कहना चाह रहा था कि पूरी पृथ्वी भर में परमेश्वर की आराधना It's होगी। going to go all over the world now. वो पूरी पृथ्वी भर में परमेश्वर की आराधना फैल जाएगी। And therefore, we need to understand that in principle, worship is not restricted to a church service. और इसके लिए हम अभी आज ही जानते हैं कि जो आराधना करना है वो सिर्फ किसी चार दीवारी चर्च के अंदर करना It's नहीं not है। only in a church, it's not only in a prayer meeting, it's not only in your house when good music is going on, it's everywhere. Like somebody said, it's anywhere, it's everywhere. कि परमेश्वर की जो आराधना है वो सिर्फ हम कलीसिया में आते हैं या अपने घरों की दीवारों में करें, सिर्फ उतना नहीं, लेकिन हम जहाँ कहीं जाते हैं हम परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। Okay, now first time we see about worship in the Bible और अब जो हम पहली बार आराधना को देखते हैं is बाइबल in में, Genesis chapter 22. वो हम उत्पत्ति के 22 अध्याय में देखते And हैं। God calls his child Abraham. और जो परमेश्वर है वो अपने पुत्र इब्राहिम को And बुलाता says, है Abraham, now I want you to take your son to one mountain and sacrifice. वो कहता है कि इब्राहिम अब तो उठ अपने बेटे को ले और जाके उसकी बलि दे दे। So what does Abraham say? तो इब्राहिम क्या कहता है? Yes, boss, I'll do it. हाँ परमेश्वर मैं ये करूँगा। Now if it happens today, we'll say, no, that's not God's voice. और That's the अगर- voice of the devil. और अगर ये आज हमारे बीच में हो जाए तो हम कहेंगे कि नहीं ये परमेश्वर नहीं लेकिन किसी शैतान की आवाज God है। said, take him. लेकिन Go and sacrifice him. इब्राहिम परमेश्वर बोलता है कि जाके उसको बलि कर दे। So he goes. और इब्राहिम How जाता old, by है। the way, how old was his son Isaac at that time? किसी को पता है कि इसहाक कितने साल का था? Yes? Yes, brother, बोलिए. Brother Akash, right? 8 साल? 8 साल, okay, और कोई है? 12? Anyone else? 13, okay. I won't ask more, alright? He was around 35 years old. Anyone here 35? कोई है? 35 साल का? Anyone who's 35? कोई 35 साल Just का है? imagine, brother, if your father takes you and says, I'm going to kill you. God अगर- told me to kill you. What will you say to your father? अगर आज आपका पिता आपसे कहे कि हाँ यस आप भी, अगर आज आपका पिता आपसे कहे कि मैं तुम्हें परमेश्वर के लिए बलि लेके जाना चाहता हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? You see, he was not a child. He could have easily fought back his father. His father was more than 135 years old. हम देखते हैं कि उसका जो पिता है जो इब्राहिम है वो 135 वर्ष का था, जो इसहाक है वो आसानी से उससे लड़ सकता था कि उसे नहीं जाना है। Just like Abraham said, yes, boss. लेकिन जैसे ही इब्राहिम ने परमेश्वर को बोला कि वो करेगा, Isaac said, yes, Abba, I'll go with you. इसहाक ने अपने पिता को भी हाँ बोला और उसने बोला कि वो जाएगा। If this is what God wants, we'll do it. अगर परमेश्वर की यही इच्छा है तो हम वो करेंगे। So they go. तो वो जाते हैं And the servants ask Abraham, where's the animal? और जो सेवक है जो वो पहाड़ के पास पहुंचते हैं उसके पूछते हैं कि जो जानवर बलि करने के लिए वो कहाँ God पे will है? provide. Isaac also asks, where's the animal? God will provide. तो आइजक जो भी है वो भी अपने सेवकों को बोलता है कि कोई नहीं, परमेश्वर ने पूछा तो परमेश्वर उनको देगा भी। And then Abraham tells his servants, he doesn't say, I'm going to kill my son. He says, we are going to worship. और जो इब्राहिम है वो उन्हें ये अपने सेवकों को ये नहीं बोलता कि वो उसे बलि करने जा रहा है, वो बोलता है कि हम परमेश्वर की महिमा करने I'm जा going रहे to हैं, worship the Lord. मैं परमेश्वर की आराधना करना जा रहा हूँ। Amen. आमेन। And the word he uses was और जो शब्द उसने प्रयोग किया था shakha, शाखा, which is जो है bow down. किसी के सामने झुकना, दंडवत Bow करना, down. दंडवत करना। God said something, I'll bow down. परमेश्वर ने जो कहा मैं उसको दंडवत करता You know, हूँ। in Japanese culture, when you meet someone, you bow down. अगर हम जापान में जाएंगे तो वहाँ के लोग किसी से मिलते हैं तो वो दंडवत करते हैं एक दूसरे को। Even hello is like this. और अगर वो हेलो नमस्ते भी It's an करें act तो of झुकते respect. हैं, वो उनकी It's an act of इज्जत honor. करते हैं, वो उनको सम्मान देते हैं इस रीति It's से। in a way submitting to somebody. इसका तरीका है कि हम किसी को It's पूरे not- करें। They're not worshipping, they're honoring. To worship when we bow down, we're honoring God. और हम जब परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं हम उसकी इज्जत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। Abraham didn't say, Isaac and I are going कि हम आराधना करने जा रहे हैं मतलब एक धीरे वाला सॉन्ग गाएंगे, we think, right? Praise means fast songs, worship means slow songs. क्योंकि आज हमने सोच लिया है कि अगर हम महिमा कर रहे हैं तो हम तेज नाचने वाले गाने Alright. देंगे और आराधना मतलब धीरे वाले गाने। Worship means slow songs. You must clench your fist and your eyes should be shut tight, and then you're worshiping. और हम सोचते हैं कि आराधना कर रहे हो तो हमको अपनी आंखें बंद रखनी है, हमको परमेश्वर की ओर पूरी तरह से ध्यान लगाना है, सिर्फ वही होती है आराधना। But Abraham said, we're going to shakha. लेकिन इब्राहिम कहता है कि हम परमेश्वर की शाखा आराधना करने जा रहे हैं। Amen. आमेन। So worship is more than slow songs.
तो जो आराधना है वो सिर्फ धीरे गानों से काफी बढ़ के है। So when he was walking, तो जब इब्राहिम चल रहा था, just imagine, Abraham is thinking, जरा सोचिए कि इब्राहिम चल रहा है पहाड़ पे। Lord, after many years you gave me this son. उसने सोचा रहेगा कि इतने सालों के बाद आपने मुझे एक पुत्र दिया है। He's a big man now, वो अभी कितना बड़ा पुरुष हो गया है and you want me to end his life, और आप चाहते हो कि मैं उसे मार दूं, but I'll do it. बट मैं फिर भी उसे करूंगा। Because he must have thought in his heart, Lord, here I come. क्योंकि उसने अपने You मन said में it, सोचा रहेगा, I'll उसने अपने मन में सोचा रहेगा कि परमेश्वर तूने कहा है और आज मैं ये करूंगा। Shakha, bow down. शाखा, मैं तुझे दंडवत करूंगा। Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my Lord. That's what he must have thought, Abraham. Lord, there's no one like you. And if you said something, I'll do it. इब्राहिम ने सोचा रहेगा कि परमेश्वर तेरी तरफ कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, और तूने अगर कहा है तो मैं उस कार्य को आज करूंगा। Amen. आमीन। Can we say it ourselves? क्या हम आज खुद से बोल सकते हैं ये? Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. आमीन। And then at the last minute, God stops him. और उस आखिरी समय में परमेश्वर ने उसे रोक दिया। But Abraham proved लेकिन इब्राहिम ने ये that he बता was दिया willing to obey God. कि वो परमेश्वर की आज्ञा पे चलने पे तैयार And था, that was his worship of God. और ये उसकी आराधना थी। It's not the songs we bring. ये सिर्फ वो गाने नहीं जो हम परमेश्वर के लिए It's लाते not the हैं, music we play. ये जो गाने हैं सिर्फ वो नहीं जो हम परमेश्वर के सामने It's लाते not हैं, the jumping and the dancing. सिर्फ वो नाचना या कूदना नहीं जो हम All that परमेश्वर के is सामने very good, करते no हैं, doubt about that. वो सभी काफी अच्छा है। We can bring our best instruments to the church. हम इस कलीसिया में सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ला सकते हैं We can बजाने के learn the लिए, best of scales and the best of music. हम हर तरीके का गाना बजाना सीख सकते हैं, We can be shouting and have the best dances. हम अपने पूरे मन से उसकी तरफ आवाज लगा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं But if कलीसिया। our life is not got obedience of God, there's no worship. लेकिन अगर हमारे जीवन से अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो किसी भी It's आराधना के just लायक noise नहीं। and nothing but noise. ये सिर्फ और सिर्फ आवाज और आवाज रह जाती And है। Abraham proved और his worship was his obedience of his God. अब्राहम बताता है कि उसका आज्ञाकारिता ही उसका सबसे बड़ा आराधना है। Amen. आमीन। Is God speaking to your heart? जो परमेश्वर आज सभी के बातें कर रहा है, God wants our obedience. परमेश्वर हमसे हमारी आज्ञाकारिता चाहता The है। prophet Samuel, he said to King Shaul, he said, obedience is better than what? Amen. जो जो नबी शामिल है वो शाऊल से कहता है कि तुम्हारा आज्ञाकारिता तुम्हारे बलिदान से काफी बढ़कर है, Better than sacrifice. तुम्हारे उस सभी बलिदानों से बढ़ के है। Amen. आमीन। And God said to Abraham, और परमेश्वर इब्राहिम को कहता now है, that I know that you fear my name, और अब Stop. जब मैं जानता हूँ कि तुमने परमेश्वर मेरे नाम को जान लिया है, रुक जाओ। I know you fear my name. मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे लिए भय रखते हो So अपने मन what में। is worship? तो आराधना क्या है? It's fear of God. परमेश्वर का भय रखना है। Amen. Amen. What is fear of God? परमेश्वर का भय क्या है? What is fear? Okay. So I fear God. What do you mean by that? अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से डरते हैं, उसका भय है हमारे If I'm to तो क्या ask you, मतलब what is है? fear of God? Does anyone want to say this? क्या कोई बोलेगा कि परमेश्वर का भय है मतलब What do क्या you mean by है? fear? I'm afraid of God. हम कहते हैं कि हम उससे काफी डरते I'm डरते scared of रहते God. हैं। तो उसका मतलब हम क्या जानते It's हैं? like if the principal of the college or the school calls me, I'm scared. अगर कोई आपके कॉलेज स्कूल का कोई प्रिंसिपल है आपको कॉल करे तो हम कहते हैं कि हम उससे डरते But हैं, that is not what fear of God is. लेकिन वैसा थरथराना डरना परमेश्वर का डर से अलग The है। Bible uses a word in Hebrew called yareh.
जो बाइबल है वो इब्रानी भाषा में डर को बताती है यर्रे। Yareh or Yira, both two words. One is the root and the other is the full word. यर्रे और यिरा, हम दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल And it करते हैं actually means to acknowledge who God is. और इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर कौन है उसको जाने। To stand in awe of God. God, you're so big, you're so great. That is fear of परमेश्वर की God. महानता को पूरी रीति से जब हम जानते हैं उसको बोलते हैं उसका डर मानना। Imagine that. Has anyone been to Lonavala? कोई लोनावला गया है? You've been to Lonavala? Yeah? Been to Mahabaleshwar? Anyone's been to Mahabaleshwar? महाबलेश्वर गए हैं? If you stand on at the, you know what they call the points, like अगर हम- Sydney Point and all these other points. हाँ, अगर हम ऐसे किसी पहाड़ पर खड़े हैं उसके पॉइंट्स पे हम जब खड़े हैं तो कैसा And किसी you ने look देखा? down into the valley. और हम उस तराइयों में झांकते नीचे देखते Many हैं। people say that when we stand in such places, बहुत लोग कहते हैं कि जब हम ऐसी जगह पे खड़े होते we हैं think of one song. हम एक गाने को याद You know करते which हैं। one? क्या हम जानते हैं कौन सा? Then sings my soul, my Savior God to thee. Have you heard this? क्या सुना है ये गाना? How great thou art, how great thou art. प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान. Why do you say that? हम ऐसा क्यों कहते हैं? Because you look at nature, you look at everything and you say, oh my goodness, it's so big. कि हम उस सभी नेचर को उन सभी पहाड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि ये कितना विशाल है God, we are in awe of you. कि हम परमेश्वर की उसकी महिमा करते हैं वैसा। That is fear of God. वो है परमेश्वर कब है? God doesn't want us to be frightened of Him. He's not standing with a danda waiting to beat us up. परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर हम उसके बारे में ऐसा सोचे कि परमेश्वर है कि उसके पास एक डंडा है और Hey, हम Brother James खड़े हैं broke उसके one of the साथ। commandments. Come, turn around. I'm going to whack you till you're black and blue. तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि अगर तुम्हें ये आज्ञा याद नहीं हुई तो वो ब्रदर जेम्स को बुलाएगा और उन्हें मारेगा, ऐसा नहीं। It's not God. ये परमेश्वर नहीं, That's not fear of God. वो परमेश्वर का भय God रखना is a है। loving Father परमेश्वर एक प्रेमी पिता है who disciplines His children. Of course. और अपने पुत्रों को कौन नफरत करेगा? No, He disciplines हाँ, them. वो अपने बच्चों को शिक्षा ही देगा। No doubt. But we are in awe of Him. That is fear of God. लेकिन जब हम उसके पूरे उसको जानते हैं तो होता है कि हम उसकी भय में Not चलते that we हैं। are so frightened of Him, I don't want to go there. ऐसा नहीं कि हम उससे काफी ज्यादा डरते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं उसके पास। I respect Him. मैं उसका I आदर acknowledge करता His हूँ। greatness, His bigness. मैं उसकी महानता को जानता हूँ, उसको मानता हूँ He's all powerful. और उसकी पूरे सर्वशक्तिशाली। That is fear of God. वो है परमेश्वर का And भय that should be in our worship. और वो हमारी आराधना में होना When चाहिए। we acknowledge who God really is. जब हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर खुद कौन है And if you want to know who God is, we need to read more and more of His word. और अगर हम चाहते हैं कि हम जाने कि परमेश्वर कौन है, हमें ज्यादा से ज्यादा उसकी वचनों में समय Amen. बिताना होगा। So what have we seen? तो हमने Worship क्या is देखा? bowing down. कि जो आराधना है वो दंडवत करना Worship है। is obedience. जो आराधना है परमेश्वर की बातों को मानना है। Worship is fear of God, acknowledging who God is. जो आराधना है परमेश्वर के भय को मानना है। Now I'll give you something more from a book which most people don't read in the Bible. हम एक अभी ऐसे किताब से कुछ और जानेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते The हैं। book of Leviticus. Levi Vyavastha, right? Okay. I won't ask you to show your hands if you've read the book or not. Most people have not. Okay, लेवी व्यवस्था किसी ने पढ़ा है? हाथ उठा सकते हैं। Yeah, most even after 40 years of Christianity have not read. 40 साल के बाद भी कई सारे No लोगों ने नहीं problem. पढ़ा है। But I tell you, it's one of the most beautiful books of the Bible. It's my favorite book. लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बाइबल की एक बहुत ही अच्छी किताबों में It's से an है। amazing book. वो एक बहुत ही अच्छी किताब And है। Leviticus starts with 5 sacrifices. और लेवी व्यवस्था है वो 5 बलियों से शुरू होती है। 5 sacrifices. You start with the burnt offering, the peace offering, the sin offering, the guilt offering. 5 sacrifices. तो ऐसे तरीके से पशु बलि Okay, so no problem. We'll talk about one sacrifice. हम सिर्फ एक बलि के बारे में First जानेंगे। of all, let me ask you a question. What do you mean by sacrifice? What is sacrifice? पहली बात कि बलि करना क्या होता है? What is sacrifice? Yes, sister. Something that you love, you sacrifice. You give it up. You give up something you love.
right? That sacrifice. Yes, brother. परमेश्वर को खुश करना खुश करना, वो है बलिदान. बलिदान Okay, so no problem, right? And that's fine. The Hebrew word for sacrifice, you must learn this word. It's a word called korban. Can you say it with me? Korban. जो इब्रानी शब्द है जो बलि के लिए इस्तेमाल होता है वो है कुर्बान. In English, it's translated as sacrifice. I suppose in Hindi as what? Bali or home bali. Correct? इंग्लिश में हम उसे सैक्रिफाइस बोलते हैं, हिंदी में बलि होम बलि कहते हैं. Okay. What does korban mean? लेकिन कुर्बान का क्या मतलब Okay, and है? everything I'm saying, you can Google it, check in ChatGPT, Gemini, Copilot, wherever you want to. हर एक चीज जो मैं कह रहा हूँ आज वो सभी आप जाके चैट जीपीटी गूगल ये सब कर सकते It's हैं. being recorded. So I stand by my words. एंड ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो मैं सच कह रहा हूँ, देख Korban, सकते हैं. it means to draw near to something. कुर्बान का मतलब होता है कि हम किसी चीज के नजदीक जाते हैं. Okay, if I want to draw near to him, go close to him, it's a korban. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रदर के नजदीक जाऊँ तो वो कुर्बान होना So होता different, है. right? We think sacrifice means give up something. I love something, so that is English. But the Hebrew does not describe it like that. Hebrew says to draw near to God is korban. ये कितना अलग हो गया कि जब हम बोलते हैं कि हमें बलि करना है तो मतलब हमें किसी को प्यारी चीज को खत्म करना है, लेकिन जब हम कुर्बान जानते हैं तो हम जानते हैं कि उसका मतलब किसी के नजदीक When I'm करीब going जाना. near to somebody, I'm worshipping. that जब मैं person. किसी के नजदीक जा रहा हूँ तो हम उसकी Not that आराधना person, कर रहे हैं. but God. It's in reference to God, not in reference to human relations. It's in Okay. reference to relations with God. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की नहीं, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उसके नजदीक जाना. So the word is korban, drawing near to God. और जो कुर्बान है उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के नजदीक Now जाए. I'll surprise you again. और मैं एक अचंभा वाली बात और बताऊंगा. We think God demanded sacrifices in the Old Testament. हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हमें बलिदान करना है. But when you read Leviticus, you'll see that 4 out of 5 were voluntary sacrifices. God never demanded them. लेकिन जब हम लय व्यवस्था पढ़ते हैं 5 में से 4 बलि ऐसे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कभी भी नहीं चाहा था. God never demanded, परमेश्वर ने कभी खुद से नहीं चाहा but था वो God बलिदान. specified. लेकिन परमेश्वर ने ये कहा था If you're going to offer a sacrifice, if you're going to draw near to me, it has to be done properly. लेकिन अगर तुम चाहते हो अपनी मर्जी से कि तुम कुर्बान करो तो फिर परमेश्वर के प्रॉपर रीति से करो, Properly. एक सही तरीके Because से. the offering was an act of worship. क्योंकि जब हम वो बलि करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना And करते हैं. God is saying, if you're going to worship me, I'm not demanding your worship, but if you will worship me, you will do it my way, not your way. और परमेश्वर बोलता है कि अगर तुमको चाहिए कि तुम बलि करो, तुमको चाहिए कि तुम मेरे नजदीक आओ, तो फिर तुम मेरी रीति से चलोगे, ना कि अपने तरीके से. Amen. We're worshiping the King. हम राजाओं के राजा की आराधना कर रहे And so हैं. God decided, और परमेश्वर ने फिर if सोचा you're going to come near to me, you have to dress up in a certain way, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे नजदीक आओ तो तुमको not casually. एक तरीके से पहरावा करना So he होगा. said the priest has to dress up this way, you have to do this, you have to do that, because God said you're coming close to me. तो उसने एक आज्ञाएं बना दी कि अगर किसी याजक को आना है, किसी दूसरे इंसान को आना है, तो एक तरीके से उस पहरावे में आना होगा उसके We पास. have to be reverent of God. This is fear of God. कि हमें परमेश्वर का भय रखते हुए उसके सामने आना होगा, उसके It's like I नजदीक can't जाना come like होगा. this. God, मैं आ गया हूँ. I've come. So God will say, so what? Who are you? I'm the king of the universe. हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम उठ गए सुबह and फिर सिर्फ परमेश्वर के चरणों में चले गए और बोल दिया कि मैं यहाँ पे हूँ. हम इस रीति से नहीं जा सकते. You've उसके come. सामने. So what do I do about it? तो परमेश्वर बोलेगा कि हाँ तुम आ गए हो तो मैं क्या करूँ. See, often we are treating God too casually. हम कई बार कई तरीके में परमेश्वर को काफी हल्के में लेते हैं. यीशु तेरा नाम, and we're looking at Facebook and ये वो सब कर रहे हैं. मतलब यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. कि हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं कि यीशु तेरा नाम ऊंचा है, लेकिन हम फिर भी सिर्फ फेसबुक और उस पे लगे Ever हुए seen हैं. someone doing that? क्या किसी ने किसी को ऐसा करते हुए देखा है? Multitasking worship. मल्टीटास्क एक ही साथ में 10 काम कर रहे हैं. हाँ, देखा है? You've seen anyone doing all this? देखा है ऐसे किसी को? Or casually, hands in pocket. या फिर बहुत ही आराम से अपने खीसों में हाथ डाला I'm है. the cool. God, I'm the cool dude. और परमेश्वर के सामने ऐसे ही आते हैं उठ के and फिर बोलते हैं परमेश्वर की मैं आ गया हूँ. Would we do that in front of the Prime Minister?
क्या तुम इस तरीके से किसी प्रधानमंत्री के पास जाओगे तो करोगे? Wear a banyan and just go. God, मैं आ गया हूँ. तुमने एक But बनियान पहना how's- है, फिर परमेश्वर के see, सामने आओ। when we're attending these online meetings at home, na, most of the time we're in some shorts, torn t-shirts, कुछ कैसे भी बाल है. We are in front of God. We're not in front of some human being. एंड जब ज्यादातर क्या होता है, जब हम ऑनलाइन मीटिंग्स लेते हैं तब लोग कैसे भी बैठ जाते हैं, कुछ भी कपड़े या फिर कुछ भी हेयर स्टाइल पहन के। हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं उस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। Look, this is what is attitude. और ये है एक रीति पे चलना। In the offering nowadays, less people put notes, right? Nowadays, a lot of offerings are online. But earlier offerings would be, if somebody has a torn note in their purse, don't put on the church में दे दो. कई बार हमने देखा रहेगा कि अभी जब दान का समय आता है तो अभी तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन कई लोग अगर उनके पास फटी हुई नोट या फिर ऐसी कोई नोट रहती थी तो वो दान में जो डाल देते शॉपकीपर हैं। नहीं लेगा, वो अपन चर्च में डाल देंगे. Just get rid of it. जो दुकान वाला नहीं लेगा, मना कर देगा, वो हम आके तीर What ऐसे is चर्च में this? डाल What देते kind of हैं। heart is this? ये किस तरीके का हृदय से हम परमेश्वर के सामने आते So हैं? God said in the sacrificial system, तो परमेश्वर ने उस बलिदान के उस if सिस्टम you में want to come कहा close to me, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे you will do नजदीक it my आओ, way. तुमको मेरे तरीके से आना Otherwise, I होगा। don't want your sacrifice. अदरवाइज मुझे I'm not interested. या फिर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बलिदान। But if you're going to do it, you do it properly. लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम करो तो अच्छे रीति से करो, Because worship is based on a relationship. क्योंकि आराधना जो है वो एक रिश्ते से जुड़ा है। Amen. If I love someone and I value someone, I will treat them respectfully. अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ, उसका आदर करता हूँ, तो मैं उसको आदर की रीति से उससे व्यवहार करूंगा। I will concentrate while talking to that person. मैं उसके ऊपर ध्यान लगाऊंगा जब मैं उससे बातें कर रहा हूँ। Vaibhav is my old childhood friend. और जो वैभव अंकल है वो उनके ओल्ड दोस्त Just हैं। imagine, I'm talking to him. I'm saying, "हाँ, Vaibhav, okay, क्या चल रहा है? हाँ, ठीक है, you're fine." What will he feel? वो कैसा Will he feel respected? अगर हम वैभव सर से अंकल से ऐसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, किसी और की तरफ देखें तो क्या उनको वो आदर सम्मान But I'm मिलेगा? trying to tell you, often this is how we worship God. This is how we are praying. This is how we are reading our Bibles. लेकिन पता है ज्यादातर आज के दिनों में हम परमेश्वर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, हम ऐसे ही उससे व्यवहार करते हैं। Think about it. जरा सोचिए अपने But मन when we're in church, we are on fire. में। लेकिन जैसे हम कलीसिया में आते हैं हम फुल आग से भर जाते हैं Absolutely, it's like this is the day of Pentecost. और हम ऐसे सोचते हैं कि ये बस ये पेंटेकोस्ट का ही दिन है आज। But think of this. लेकिन जरा सोचिए इस बारे में। Obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता आपके बलिदान से काफी Now, when the बड़ा है। worshipper in Leviticus had to bring an animal, God defined, okay? Animal has to be without defect. So no torn knots. अभी लय व्यवस्था में हम देखते हैं कि अगर किसी को आराधकों को बलिदान लाना रहता था तो वो एक Without सही defect. शुद्ध जानवर लाना था। Just imagine, you want to draw near to God. जरा सोचिए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना Now God is है saying you bring an animal. और परमेश्वर बोलते हैं कि आप एक जानवर को लेके आइए। Animal costs money, huh? जो जानवर है वो काफी पैसे लगते हैं उसके लिए। Worship was not free in the Bible. जो आराधना है लेकिन वो काफी मुफ्त है बाइबल The में। Hebrew people didn't worship God free of cost. जो इब्री लोग थे उन्होंने परमेश्वर की आराधना किसी भी ऐसे सस्ते में For नहीं us, किया it's all होगा। free. For us, it's free. No. हमारे लिए ये सब काफी फ्री है, We मुफ्त live in है। grace. We live in grace. हमें अनुग्रह भी का टाइम चल रहा है। हाँ, तो ऐसा हम everything कहते is हैं। free. सब चलता है. हमने सब कुछ चलता है, हम कैसे भी उसकी But आराधना for करते हैं। them to worship God cost them money. लेकिन इब्री लोगों की उसकी आराधना करने के लिए उनको पैसे लगते Okay, थे। if you bring a goat, अगर तुम एक today बकरी if को you buy a लाते हो, goat is about what? 10-11 kilos for a goat. One goat. How much is mutton? 840 rupees, 850, 900. कितना है mutton? 25,000. One goat. 25,000 for one goat. Okay. Even if you take a small goat, 15,000. Yeah. To worship God would cost somebody 15,000 rupees. परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज के समय में किसी को 15,000 रुपए लगते हैं। When I pay, I have value. Then I want the value for my money. जब हम किसी को पैसे देते हैं तो अब हमें उसका पूरा हिसाब चाहिए कि हम उसको दें। If it's free, चलता है. Everything's okay. लेकिन अगर वो मुफ्त है तो सब कुछ चलता है। The worshipper in the Bible had to pay money. तो जो बाइबल में परमेश्वर की आराधक थे वो पैसे देते थे। It cost them something. वो उनको कुछ लगता था, उनकी कीमत थी उसकी। Now the first offering is called the burnt offering. पूरा जला हुआ. चला वो Everything was burnt up.
कि हर एक जो चीज और जानवर के साथ पूरी buy तरीके से a चलना goat, चाहिए। goat, 15,000 का goat you take, let's say, small goat. कि सोचिए अगर हमने आज एक 15,000 का एक बकरा लिया And the whole thing is burnt up. और वो पूरी चीज को जला दिया, Then you go home and your wife or husband or mother, father, grandmother ask, what did you do with 15,000? I offered it to God. I burnt up my money. और फिर हम ऐसे ही उसको पूरा जलाने के बाद घर पे जाते हैं, हमारा जो भी हस्बैंड पति है या पत्नी है, मतलब ये पूछता है कि तुमने क्या किया उस 15,000 का, Just imagine और that. हम बोलते हैं कि हमने उसको परमेश्वर के लिए दे दिया, बलि कर दिया। You didn't even eat one piece. हमने एक piece भी नहीं खाया. हमने उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं खाया। Run, shoulder, chops, कुछ नहीं. हमने उसके जितने भी पीसेस थे, जितने भी टुकड़े थे, उसमें से कुछ भी नहीं खाया। No, not even the bheja fry. Nothing. All burnt. कुछ भी नहीं बचा रखा, सब कुछ चला गया। You know why? पता है क्यों? Let me demonstrate this. I'll call my dear friend Elia. Come, Elia. Now you become a goat. Okay? Come. You're the goat. ओके एलिया Go down, go down. Goat is on all four, na? All four, good. Are He's the goat. I am offering. अभी एलिया जो है वो एक बकरे की तरह So है। in the Bible it says, I have to put my hands on the goat's head, both hands. अभी बाइबल में लिखा है कि हम जब बलि करते हैं तो हम उसके सर पर हाथ रखते हैं बकरे के। Why? दोनों हाथ। Why? क्यों? Because I'm investing my life into this animal. क्योंकि मैं अपना जीवन उस जानवर के अंदर दे रहा हूँ, And this animal will die on behalf of me. और ये जो जानवर है वो मेरे बलि में उसका बलिदान होगा। Okay? So everything in me is now in him. तो अब हर एक चीज है जो मेरे अंदर थी अब वो उसके And अंदर चली then, जाएगी। he doesn't want to get burnt. He doesn't want to get burnt. एलिया को शायद आज जलना नहीं है पूरा, उसको जिंदा जाना है। So we let him go. तो हम उसको जाने दें, इज दैट फाइन? Right? So when the thank you. Clap for him. He's a good boy. From morning he's been toiling, working very, very hard. सुबह से बेचारा एलिया काम कर रहा है, यहाँ पे आया है वो। So when the animal is fully burnt, तो भी जो जानवर है जब वो पूरी तरीके से जल actually जाता है, I am fully burnt. तो उसका On मतलब behalf of me, the animal's burnt. तो उसका मतलब है कि उस जानवर के बदले में मैं पूरी You तरीके से get me? जल गया हूँ। The symbol of this, it's symbolic. कि इसका जो है वो एक तरीका है Is जो my चिन्ह whole है life is a burnt offering before God. कि मेरा जो पूरा जीवन है वो परमेश्वर के सामने एक जला हुआ एक बलिदान है, That's the burnt offering. वो है एक होम बलि। Because I have put my hands on his head, I've invested in him, and now he's burnt. It means I'm burnt in front of God. कि इसका मतलब है कि मैंने जो उसको बलि किया, मैंने अपना पूरा जीवन उसके अंदर लगा दिया और अब मेरा पूरा जीवन परमेश्वर Instead के of सामने बलि me, कर the दिया। animal. मेरे बदले में वो जो जानवर था वो चला गया। Paul says in Romans chapter 12, पौलुस And रोमन verse की किताब 12 में कहता present है, your bodies a living and holy sacrifice. पौलुस कहता है कि हम खुद को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के सामने He's taking the same concept from Leviticus. वो वही सेम चीज जो लेवी व्यवस्था में लिखा है वो यहाँ Amen. पे बताता है। And he says, present your body a living sacrifice. Sacrifice? Your body to draw near to God. और पौलुस से वो यही कहता है कि हम खुद का आज का ये शरीर ले और परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान And की he तरह से says, सौंप। that is your act of worship. और ये होगा तुम्हारा आराधना करने का, That is your worship. वो तुम्हारी आराधना When you होगी। present yourself fully to God. जब तुम खुद को पूरी रीति से परमेश्वर के Amen. सामने देते हो। Worship is when I give myself fully to God. Everything, Lord, everything's yours. आराधना वो है कि जब हम परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पण करते हैं उसको। Amen. Are you with me? Yes. Like we can say, come on, maybe we can sing this together. हम ये सब भी एक सॉन्ग साथ में गा सकते हैं। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा
worship to God. ये है हमारा आराधना करना परमेश्वर के सामने। In Leviticus, the worshipper would wait. लेवी व्यवस्था में जो आराधक है वो Is इंतजार my करेगा offering accepted by God or not? कि मेरी जो बलिदान है वो परमेश्वर तक पहुंची And that है। is what King David prayed. और यही जो दाऊद है वो He says, प्रार्थना करता Lord, may है the meditation of my heart, may the words of my mouth be acceptable unto you. वो बोलता है कि मेरे जो वचन है, मेरी जो बातें हैं वो तुझको ग्रहण योग्य हो। This is worship of God. ये है परमेश्वर की आराधना। Now, lastly, worship in the scripture is about lifestyle. और हम जब आखिर में देखते हैं जो आराधना बाइबल में हम देखते हैं वो एक obedience of जीवन God. है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। Amen. आमीन। We can't say that my body is separate, my mind is separate, my spirit is separate. We are three as one package. हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मन, मेरा हृदय ये सब कुछ अलग अलग है, लेकिन हम तीनों मिला के एक हृदय, एक शरीर So what बनते I हैं। do in my body affects my spirit. तो हम जो कुछ भी हम शरीर में करते हैं हमारी आत्मा में वो जाता If है। I do the wrong things in my body, it's hurting my spirit. अगर हम कुछ भी गलत कार्य अपने शरीर में करते हैं वो मेरी आत्मा में दुखी If पहुंचाता I है। entertain the wrong thoughts in my mind, it's impacting my spirit. अगर मैं कुछ बुरी सोच विचार अपने दिमाग में सोचता हूँ वो मेरे आत्मा को जाता Because है। we are one, we are integrated as one. कि हम पूरी एक रीति में एक है परमेश्वर के साथ। As Paul said, the body has many parts. जैसे पौलुस कहता है कि जो शरीर है The उसमें hand कई does अंग one हैं। thing, the head does one thing, the leg does one thing, but it's one body, it's integrated. कि हमारा हाथ कुछ अलग कार्य करता है, दिमाग कुछ अलग, पैर कुछ अलग, लेकिन वो सब मिल के एक ही शरीर And in the बनता same है। way, our bodies, our souls, our spirits are one. What we do in the body impacts the spirit. Don't do the wrong things. It will hinder your worship and relationship with God. और हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो शरीर है, हमारा आत्मा और हमारा मन तीनों एक ही है। आज हम जो भी चीज हमारे साथ करेंगे वो परमेश्वर की आत्मा को दुखित करता है। When we worship, finally we come to a stage where we want to serve God. हम जब आराधना करते हैं तब हम एक ऐसे मोड़ पे आते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना But चाहते हैं। service is an outcome of what's in the heart. ना वो सेवा करना होता है कि हम जो हृदय से आता है। Often we are in a hurry to get titles. हम सोचते हैं कि हमको कोई ना कोई एक टाइटल I चाहिए, want to be चिन्ह चाहिए। apostle, I want to be a prophet. Nowadays the prophets. Okay, I want to be a pastor. I want these titles. People want all sorts of titles nowadays. हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई शीर्षक मिले कि हमें एक चेला बनना है, हमें एक सेवक बनना है, लेकिन किसी को भी सेवक जैसा बनना But नहीं our है। priority should not be titles. Our priority should be drawn near to God. Service will come as an outcome of drawing near to God. हमारा जो मेन मकसद है वो हमें किसी को शीर्षक पाना नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा करना है। David in the Bible, you know what his name means? David, what is David? Anyone with the name David? किसी का नाम दाऊद है या फिर उसका मतलब No, पता you know है? anyone with the name David? किसी दाऊद नाम के इंसान को जानते हैं? दाऊद का मतलब होता है एक प्यारा, Beloved of God. परमेश्वर का प्यारा। And look at his worship. और उसकी आराधना को He's देखो। written 75 of the Psalms, 50% of the Psalms. उसने 75 जो आराधना है वो इस भजन संहिता में लिखा है। His worship, his writing of Psalms is not motivational. जीतेंगे हम and all that. Those are motivational songs. Those are not worship. और उसने जो आराधनाएं लिखी है वो सिर्फ कोई मोटिवेट करने, हमको कुछ अच्छा लगने के लिए उसने आराधनाएं नहीं लिखी। मसीह में हम जीतेंगे हम and you know those जब साथ है मसीहा जीत हम पाएंगे. These are motivational songs. These are not worship. ये सभी जो गाने हैं जो हम लेते हैं कि मसीहा जीतेंगे, ये सभी हम खुद को अच्छा करने We के are लिए, pumping खुद को ourselves उत्साहित up. करने के लिए करते हैं। We are pumping ourselves up by that. हम खुद को अच्छा लगने के लिए हम वो सभी गाने But लेते the book of हैं। Ephesians says, come to God with singing psalms. लेकिन इफिसियों की किताब कहती है कि परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके पास आओ। Sing the scriptures. परमेश्वर के वचनों को When we गाओ। sing the scriptures, we're really drawing near to God. जब हम वचन गाते हैं हम तभी परमेश्वर के नजदीक आते हैं। Worship is based on the word of God. जो आराधना है वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। Worship is based and goes along with prayer. जो परमेश्वर का आराधना है वो उसके वचनों और उसकी प्रार्थनाओं के साथ जाता If you है। have a life of prayer, you're worshiping God. अगर हम अपने प्रार्थना रीति में समय बिताते हैं उसके जीवन में तो हम उसकी आराधना करते हैं। Amen. आमीन। And I would say, I will end with one thing. और हम आखिर में एक चीज When we ध्यान live as per the word of God, जब we हम are परमेश्वर worshiping के God. वचन के अनुसार जीते हैं हम तभी उसकी सच्ची आराधना Learn करते the हैं। Bible. उसके Learn वचनों the को scriptures. उसके वचनों को उसकी बाइबल को Carry पढ़ो, the scriptures with you.
उसके वचनों को अपने साथ लेकर Carry the चलो, Bible with you. उसका बाइबल अपने साथ Let it be your लेकर testimony. चलो। ये हमारी एक गवाही हो। Amen. आमीन। And when you look at the Psalms, और जब हम भजन संहिता में देखते हैं, they constantly call back things of the scriptures like the Passover and different events. जब हम भजन संहिता में देखते हैं, वो बार-बार पुराने नियम में जो लिखा हुआ है, वो बार-बार उन चीजों को दोहराता है। And the Bible encourages us to use the Psalms. और ये जो बाइबल है, वो हमें उस साम्स को, भजन संहिता को इस्तेमाल करने में हमें उत्साहित I करता encourage है। you to study, meditate on the Psalms. Your worship will go to a new level. और मैं आज सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप वचनों को पढ़िए, उसकी बातों को सुने। Amen. When we live a life of the Bible, जब एक ऐसा जीवन जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ when है, you obey the commandments of God, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, you're worshiping God. तब हम उसकी आराधना कर रहे And हैं। I want to end with that. और मैं उसी के साथ आज खत्म कर Learn the commandments of God. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, Obey सीखो। the commandments of God, उसकी आज्ञाओं को मानो, because that's worship of God. क्योंकि वो है उसकी सच्ची आराधना। That's what David wrote. और वही आज दाऊद ने लिखा था। If you look at Psalm 119, जब हम भजन संहिता 119 देखते a हैं, Psalm of David, दाऊद का जो भजन है, it's all about, he goes on talking about God's word, God's laws, God's testimonies, everything. वो उस पूरे अध्याय में परमेश्वर के वचन के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में और जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में उसने सब उसमें लिखा है। That's worship. वो है एक सच्ची आराधना, When we live as per the word of God. जब हम परमेश्वर के अनुसार जीते हैं। Okay, I have much more to share, but I will stop here. काफी कुछ था मेरे पास आज बताने के लिए, Let me लेकिन just मैं यहाँ close पे our eyes रुकता for a हूँ। minute. हम सभी अपने आंखें बंद करेंगे And we'll just pray. और हम प्रार्थना करेंगे, Father, that you would make us true worshippers. कि परमेश्वर पिता आप हमें एक सच्चे आराधक बनाएंगे। That our lifestyles would worship you. हमारे जो जीवन है उससे हम आपकी आराधना करेंगे। Lord, that we would stand in awe of you. कि हम आपके जो चीजें हैं हम उसको जानेंगे, We would obey you and your word. हम आपको और आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, We would shaka, bow down before you, Lord. हम आपके सामने खुद को दंडवत करेंगे And we would declare you as our King. और हम सिर्फ आपको ही हमारा राजा घोषित That करेंगे। we would approach you the way you want us to approach you. हम आपके सामने आएंगे जैसे आप चाहते हैं कि हम आए आपके With पास। honor and respect. हम आपका आदर और सम्मान करेंगे, With a wholehearted approach, not a divided approach. हम अपने पूरे हृदय से, ना कि किसी आधे रीति से हम आएंगे That आपके we would पास, be a full burnt offering in front of you, completely, O Lord. कि हम पूरी रीति से, पूरी तरीके से हम खुद को एक होम बलि की तरह आपको चढ़ाए। Our lives would be an offering to you. हमारा जो जीवन है वो एक बलिदान की तरह आपको हम दें And we would live as per your word. और हम आपके वचन के अनुसार चले। With every eye closed, if anyone would like to make a fresh commitment to the Lord this evening, I would like you to just raise your hand and put it down. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.